বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আমি আমাদের বক্তাদের অনুরোধ করব, আপনারা 4 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে বক্তৃতা সীমিত করুন। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন দ্য লোকাল জার্নালিস্ট। এই মুহূর্তে দ্য লোকাল জার্নালিস্টের টিম দাঁড়িয়ে আছে মেয়ো রোডের গান্ধী মূর্তির ঠিক সামনে এবং এখানে প্যালেস্টাইনের সমর্থনে কিন্তু আবার একটি র্যালি অর্গানাইজ করা হয়েছে খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে, যেখানে খিলাফত কমিটির অনেক মেম্বাররা বসে আছেন। তো যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাইভে সরাসরি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আজকে সারা দিনের কাজ বন্ধ করে, যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন গান্ধী মূর্তির সামনে কিন্তু রোড পুরোপুরি ভাবে বন্ধ করে কিন্তু এখানে র্যালি করা হচ্ছে এবং লোকজন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু কত হাজার হাজারের কাছাকাছি কিন্তু লোক এখানে কিন্তু অংশগ্রহণ করেছে ইতিমধ্যেই। তো আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন আমেরিকার লোকাল জার্নালিস্ট। যে ইংল্যান্ড আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে ভাগ করেছে, সেই ইংল্যান্ডই, সেই ইংরেজরাই ভাগ করে 10% ইহুদি জনসংখ্যা ছিল, তাদেরকে 50% এবং বাকি 50% সেখানকার আরব জনগণের। আজ থেকে বহু বছর আগে আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী 1938 সালে বলছেন যে ইংল্যান্ড যেমন ইংরেজদের, ফ্রান্স যেমন ফরাসিদের, তেমনি প্যালেস্টাইন হচ্ছেন আরব জনগণের। 1938 সালে আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তিনি জোরের সঙ্গে বলে গেছেন এই প্যালেস্টাইন হচ্ছে আরব জনগণের ভূমি। ফলে এই আরব জনগণকে উচ্ছেদ করে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের। তো বন্ধুরা, যেমনটা আমরা জানি প্যালেস্টাইনে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু যেরকম ভাবে শোষণ চলছে এবং যেভাবে খুন করছে, হত্যা করছে, কেউ কেউ এটাকে বলছেন যুদ্ধ, যেমন প্যালেস্টাইনের উপরে শোষণ চলছে এবং প্রায় দিনে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে প্যালেস্টাইনকে বারবার প্যালেস্টাইন জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অত্যাচার করা হচ্ছে এবং তাদেরকে শোষণ করা হচ্ছে এবং বিদ্যালয় থেকে শুরু করে স্কুল থেকে শুরু করে হসপিটাল অব্দি কোনো জায়গায় কিন্তু বাদ যায় না, তাদের অত্যাচার করতে, যেখানে অনেক বাচ্চাদের মারা গেছে, যার কিন্তু প্রতিবাদে আজকের এই র্যালি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেটা মেয়ো রোড গান্ধী মূর্তির পাশেই অনুষ্ঠিত করা হয়েছে এবং এখানে অনেক বড় বড় মানুষরা বসে আছেন। যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, করা যাবে না, ডিনাউন্স করা যাবে না কোনো অজুহাতেই। প্যালেস্টাইন মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ বলে যে নিন্দা করা যাবে না। যারা নিন্দা করেন তারা চান বা না চান পশ্চিমা শক্তির হয়ে কাজ করছে। আমি বলি সারা পৃথিবীর মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছে। দেখবেন আমেরিকার কংগ্রেসে ব্যাপক বিক্ষোভ হচ্ছে। ফলে দুনিয়ার মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার জয়, মার্কিন এবং ব্রিটিশ ইসরায়েলি শক্তির পরাজয়, দুটোই সুনিশ্চিত। আগামী দিনে আমাদের জয়, প্যালেস্টাইন মানুষের জয়, সবই সুনিশ্চিত। ধন্যবাদ। ইসরায়েল ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক, ইসরায়েল মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। এরপরে আমি অনুরোধ করব, আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন খ্রিস্টান মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বিশপ আলোক মুখার্জি মহাশয়। আমি উনাকে অনুরোধ করব উনার বক্তৃতার জন্য। বিশপ আলোক মুখার্জি মহাশয়, এখনো আমাদের র্যালি আসছে, এখনো লোক বলছে র্যালি জওয়াহরলাল নেহরু রোডে এখনো র্যালি রয়েছে। আমি অনুরোধ করব যে এইদিকে লোক চলে আসবেন, বাম দিকে, এবং যেখানে জায়গা পাচ্ছেন ওখানেই বসে যাবেন। আপনারা যেখানেই জায়গা পাবেন ওখানে বসে যাবেন। জি ফাদার। নমস্কার। আজকে সত্যি একটা বিরল দিন, কেননা এই জন্যই যে আমরা সবাই আমাদের ধর্ম, আমাদের কর্ম ভুলে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা কেন উপস্থিত হয়েছি? অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। যে অত্যাচারটা প্যালেস্টাইন এর উপরে যে ইসরায়েল করছে সেটা কিন্তু সত্যি মারাত্মক নিন্দনীয় ব্যাপার। আমরা কোনো ধর্মের কথা বলছি না, আমরা কোনো কর্মের কথা বলছি না, আমরা শুধু বলছি যে এই যুদ্ধকে তোমরা বন্ধ করো। যতই যেটাই বেরুক, যেটা যুদ্ধ নয়, এটা তো যুদ্ধ। এখানে যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে এটা তো যুদ্ধের থেকেও মারাত্মক। পুড়িয়ে দিচ্ছে, কেটে দিচ্ছে, যা খুশি তাই করছে। এবং আমরা সকলে একত্রিত হয়ে এই প্রতিবাদী করব
যাতে ইসরায়েল কোনোভাবে কোনো মতে প্যালেস্টাইনকে আর আঘাত না করতে পারে, অসহায় শিশুদের প্রাণ যেন তারা না দিতে পারে, অসহায় বৃদ্ধরা যেন অসহায় ভাবে না চলে যায়। সুতরাং শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীকে আমরা জানাবো এবং এর জন্য আমরা যেভাবে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছি সেইভাবে সামিল হব এবং একত্রিত হয়ে ফ্রেন্ডস অফ প্যালেস্টাইনের পাশে থেকে আমরা এই আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এক এক করে এখন আমরা প্যালেস্টাইনের উপর একটি সঙ্গীত শুনে নেব। এখানে কিন্তু ফলস্তিন के ऊपर एक तराना हम लोग अभी सुनेंगे। এখনো सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी आरिफुर रहमान एक तराना হাজার फलस्तीन হাজার पर লোকেরা आपके কিন্তু सामने এখানে पेश অংশগ্রহণ करेंगे। করেছেন এবং আরো লোকেরা কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ করে চলেছেন। যেভাবে প্যালেস্টাইনকে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার এবং শোষণ করা হচ্ছে, তাদের স্বাধীনতার উপরেই কিন্তু আজকে এই র্যালি তাদেরকে সমর্থন করার জন্য এবং যাতে এইভাবে যাতে প্যালেস্টাইনের উপরে যাতে অত্যাচার না করা হয় তার কারণে, তার প্রতিবাদে কিন্তু আজকে এই র্যালি অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया की वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ से मेरी याद में कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी में मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अबरहा की तरह, उनकी खातिर में तो मानता ही लूं, मैं फलस्तीन हूँ, 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 मैं फलस्तीन हूँ। शुक्रिया। যে সমস্ত ভাইয়েরা আপনারা এসছেন বোনাদেরকে একটু সাইড দিয়ে দেবেন, ওনাদেরকে সামনে আসতে দেবেন, আপনারা একটু সাইড করে দেন, একটু সাইড দিয়ে দেন, আমাদের বোনেদেরকে সামনের দিকে আসতে দিন। আর যারা এই আমাদের স্টেজের সামনে যে সমস্ত ভাইরা দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে বোনেরা আপনাদের জন্য দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা একটু এক সাইড হয়ে দাঁড়ালে খুব ভালো হয়। মিডিয়া বন্ধুদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা একটু সাইড হয়ে দাঁড়ান, বোনেরা দেখতে পাচ্ছে না পেছন দিক দিয়ে।
सामने जो खड़े हुए हैं, मेरे पीछे माँ बहनें खड़ी है, वो देख नहीं पा रही, और पीछे से औरतें आ रही हैं। वॉलेंटियर को कहना है कि उन्हें जगह दे के आगे ले आए। আলহামদুলিল্লাহ, গত 26 তারিখে আমাদের একটি ছোট মিটিং হয়েছিল তারিক ফজলুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে। ওই মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এক সপ্তাহ পর আমরা কলকাতার রাজপথে একটা বড় র্যালি করব। সেদিনই ডাক দেওয়া হয়েছিল এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের রাজ্যবাসী এবং বিশেষ করে কলকাতা এবং কলকাতার লগোয়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে হাজার হাজার পুরুষ এবং মহিলা আজকে এই র্যালিতে যোগ দিয়েছেন। এখনোই র্যালি ঢুকছে। আমি আমাদের ভাইদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যেখানেই জায়গা পাচ্ছেন বসে যাবেন, মহিলাদেরকে একটু জায়গা দেবেন। আমরা আমাদের প্রোগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমি এরপরে স্বামী ডক্টর প্রমানন্দ গিরি মহারাজ, যিনি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এসেছেন, উনাকে অনুরোধ করব উনার বক্তৃতার জন্য। মিডিয়া বন্ধুদেরকে আগে বসিয়ে দিন, আগে নিয়েছে মিডিয়া বন্ধুদেরকে, মিডিয়া যে আছে তাদেরকে आगे बसिए दिन, ওরা দাঁড়াতে না থাকে, वहाँ खड़ा नहीं रहे, आगे उन लोग को भेज दीजिए, बैरिकेड से बैठ के सामने भेज दीजिए। আজকে যে মহা মিছিল, এই মিছিলে আমি আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। কেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এগিয়ে যাও, পেছিয়ে থেকো না। তোমাদের সামনে অসংখ্য ভাই বোনেরা আহত এবং নিহত হচ্ছে। তাদের যে আর্তনাদ, তাদের যে কান্না, সেই কান্নাকে বন্ধ করার জন্য তোমাদের হাতে হাত মিলিয়ে তোমাদেরকে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের এই বক্তব্য পৃথিবীব্যাপী প্রচারিত হয়েছিল। তাই আজকে আমরা ইসরায়েলে বা প্যারিসের যে আমার ছোট ভাই বোনের যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের যাতে শান্তি পাওয়া যায়, সেখানে যে যুদ্ধ যাতে বন্ধ হয়, আর কখনো এরকম আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, মানুষ মারা না যায়, সেই জন্য আমরা প্রত্যেকে আন্দোলন করব, এগিয়ে যাব এবং সবাই একত্রে আমরা বলবো, একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান আমরা ভাই ভাই, প্রতিটা ভাই বোন মিলে আমরা যদি এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের জয় হচ্ছে এবং ওদের যুদ্ধ বন্ধ হবে। এই বলে বক্তব্য শেষ করি। इसके बाद मैं जनाब जावेद अहमद खान, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और मुख्तसर में अपनी बात पेश करें। जनाब जावेद अहमद खान साहब। जावेद अहमद खान साहब कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उनसे मुताबा यहाँ जो बैठे हुए हैं, सामने बैठ जाइए, औरतों को नजर नहीं आ रहा है, जरा बराए मेहरबानी सामने से बैठ जाए, औरतों को नजर नहीं आ रहा। अब आपके सामने जावेद अहमद खान साहब। सबसे पहले सबों को आदाब, सलाम, नमस्कार। और तमाम जो साथी आज किसी पार्टी के इसमें नहीं बल्कि इंसानियत के आवाज पर और हवानियत के खिलाफ आज जो इकट्ठा हुए हैं, फलस्तीन के फ्रेंड्स के हिसाब से जिन्होंने आज यहाँ पर प्रोग्राम को कायम किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। कम से कम ये तो हम लोग कर सकते हैं कि आज हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। इस्राइल सुनेगा नहीं, ये आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कानून को भी नहीं मानता है, वार जंग की जो कानून है उसको भी नहीं मानता है। इंसानियत में उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, कहते हैं मुसलमानों को मोनस्टर। ऐसे लोगों से, ऐसे मुल्क से कुछ उम्मीद नहीं रखना है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप और हम सब मिलकर कुछ करने की अज़म करें। सिर्फ आज निंदा करने से नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर बोलने से नहीं होगा कि हम उनके खिलाफ हैं। हाँ, खिलाफ हैं, हमने मिशिल किया, हमने यहाँ पर आज मेमोरेंडम देंगे, सब देंगे, लेकिन आप एक इंसान हैं। आज किसी और के ऊपर हो रहा है, चाहे फलस्तीन के लोग हों, चाहे वहाँ क्रिश्चियन हो, चाहे वहाँ जो
यूज है उनके ऊपर भी आज जियोनिस्ट लोग जो इसराइल में हैं, उन लोग जो जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ सारी दुनिया के 192 मुल्क में 121 मुल्कों ने उनके खिलाफ आज करारदाद पास किया, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या करना हो? आप चुप से बैठिएगा, मिशन कीजिएगा, चले जाइएगा? नहीं, आपको करना है। आप जितने फॉरेन गुड्स हैं जो इसराइल में बनता है, अमेरिका में बनता है, जो इंग्लैंड में बनता है, आज जो फ्रांस में बनता है, उसका बाइकआउट करें। मेरी मां बहनों से कहूंगा, आप लोग मैकडॉनल्ड का कोई पिज्जा मत खाइए, आप लोग कोकोला मत पीजिए, आप लोग परफ्यूम मत लगाइए, आप लोग लेस का चिप मत खाइए, आप लोग बाइकआउट कीजिए इसराइल का और अमेरिका का। आप उनके जो उनका एक्सक्लूसिव जो है ताकत है उनका, उसको खत्म करने के लिए आप सब हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। ये इंसानियत को, फलस्तीन को भी तकलीफ पहुंचाएगा, आपको हमको भी पहुंचाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप यहां से तो कुछ नहीं कर सकते, आप जाके वहां कुछ कर सकते हैं, यहां से जाने नहीं मिले। तो आप जो कर सकते हैं वो कीजिए ना। आप किंगले का पानी काहे पीते हैं? आप क्यों कोकोला पीते हैं? क्यों स्प्राइट पीते हैं? क्यों आप मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं? क्यों पिज्जा खाते हैं? बंद कीजिए इसको। मेरी मां बहनों से भी इल्तिजा है और तमाम औरतों और मर्दों से जो यहाँ पर है हमारे अवाम, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आज इसराइल में ज्यादातर फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, लेकिन वहाँ चर्च भी तोड़ा जा रहा है, वहाँ अस्पतालों को भी बर्बाद किया जा रहा है, मरीजों को भी मारा जा रहा है, बच्चों को भी मारा जा रहा है। 4000 के ऊपर बच्चे मारे गए। उनका क्या कसूर है? औरतों का क्या कसूर है? आज आपने हबस को आपने तैयार किया, किसके खिलाफ? पीएलओ के खिलाफ आपने तैयार किया है, हमें इसको किसी और ने नहीं तैयार किया है। जिस तरह आज आप हमस के नाम पर कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आज कहां से आपके पास तो 193 चेक पोस्ट था, आपका सर्वाइलेंस सेंटर था, तो किस तरह वो लोग आर्म्स एम्युनिशन लाए? वहां एक मक्खी नहीं उड़ सकता है, आज किस तरह लाए? इसके लिए आज हम लोग कहते हैं कि आप ये जो जंग कर रहे हैं, ये हमस और किसके साथ कर रहे हैं उसके साथ कीजिए, लेकिन जो मजलूम बच्चे और औरतें हैं, जो नौजवान हैं, उनको मारना छोड़िए। नहीं छोड़िएगा तो आप सबों से ये इल्तिजा करते हुए कि हर फॉरेन गुड्स को आप लोग बाइकाट कीजिए, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे खाने का चीज हो। ये कहकर आप सबों से यही कहूंगा कि यहीं बंद नहीं करना है, इसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ना है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जनाब जावेद अहमद खान साहब। यकीनन हमें इजरायली गुड्स का बाइकआउट करना चाहिए, ये पैगाम भी आज के इस प्रोग्राम से दिया जा रहा है। मैं जनाब अब्दुल अजीज साहब से गुजारिश करूंगा मुख्तसर में अपनी बात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुन मिनल्लाह फतहुन करीब। दुनिया का हर फाइटर फ्रीडम, जो मुल्क के लिए लड़ता है वो फ्रीडम फाइटर है, उसको दहशतगर्द नहीं है। चाहे भगत सिंह हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे मौलाना आजाद हो, इसी तरह हमास का हर फर्द फ्रीडम फाइटर है, जिहादी है, और वो इस तरह ईमानी ताकत का मुजाहरा कर रहा है कि दुनिया बिल्कुल भौचक्का है और पूरी दुनिया को उसने हिला दिया है कि सर से बांध कर कफन कैसे लोग लड़ते हैं। अमेरिका भी हवास भागता है और इसराइल भी हवास भागता है, और इस वक्त 26-27 दिन से हमास मुकाबला कर रहा है दुनिया की दो बड़ी ताकतों से। और जहां तक इसराइल का मामला है, ये अलामत है साजिश की, ये अलामत है जुल्म की, ये अलामत है एक बारूद के ढेर का, ये एक जुल्म है, दहशतगर्दी है जो अमेरिका और बरतानिया ने वहां लाके इसराइल को बसाया है। और जहां तक हमास का मामला है, हमास ने इलेक्शन लड़ा है, कहां लड़ा है? गाजा में भी लड़ा है और फिलिस्तीन में भी लड़ा है, दोनों जगह वो इलेक्शन में जीते हैं। जो लोग उनको टेररिस्ट समझते हैं वो नावाकिफ हैं, ये फ्रीडम फाइटर हैं, और इस तहरीक का नाम है तहरीक मुजाहिमत इस्लामिया। ये कोई ऐसी तहरीक नहीं है जिसको लोग टेररिस्ट और दहशतगर्द कह रहे हैं, ये ईमान का जबरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ तकरीर कर रहे हैं और अभी 6-7 अफराद
हम लोग जाएंगे अमेरिकन कॉन्सुलेट और वहाँ अमेरिकन कॉन्सुलेट से अगर मुलाकात हुई या उनके नायब से मुलाकात हुई तो हम लोग यहाँ के जो जज्बात हैं और दुनिया भर के इंसानों को जो जज्बात हैं उसको हम लोग पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल अजीज साहब। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब महर अब्बास रिजवी साहब से कि वो आए और मुख्तसर में अपनी बात। अच्छा वही करेंगे, ठीक है। जनाब शकील अहमद साहब, मौलाना शकील अहमद साहब मुख्तसर में यहाँ पर मुख्तसर में 3-4 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि प्रोग्राम असर का मामला भी है, इसलिए गुफ्तगू करते वक्त इस बात का खुसूसी ख्याल रखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मेरे बुजुर्ग मोहतरम साथियों और मेरी माँ बहनों, देखिए जहाँ पे जुल्म बढ़ता है और जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ता है तो जब मजलूम की आवाज बुलंद होती है तो जालिम का एक नहीं चलता है। ये हकीकत जान लीजिए, ये जालिम, ये इसराइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि मुट्ठी भर मुसलमान जो फिलिस्तीन में जिंदगी गुजार रहे हैं इसको निकाल करके हम फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे और बैतुल मुकद्दस को अपने हवाले कर लेंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जो खुदा अबाबीलों के जरिए खाना कबा को बचा सकता है उसने इंसानों को पैदा किया है, उसने बच्चों को पैदा किया है, वही बच्चे और जवान फिलिस्तीन को बचाएंगे और बैतुल मुकद्दस को बचाएंगे। और ये दुनिया देख रही है, आज इस्लामी ममालिक ये पूरी कायनात में फैले हुए हैं। मैं इस्लामी ममालिक से भी चाहता हूँ कि वो लोग भी अपनी अपनी जगह से ऐलान जंग करे। जिस तरीके से ईरान फिलिस्तीन के हवाले से बहुत मुत्तहिद होकर काम कर रहा है, ईरान ने शुरू से कहा है कि बैतुल मुकद्दस हमारा है, ऐसे हम लेके रहेंगे। अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, डोंट वेट अमेरिका, अमेरिका कहिएगा, डोंट वेट अमेरिका, डोंट वेट अमेरिका, इसराइल मुर्दाबाद। इस्लामी ममालिक इतने सारे हैं, अगर सब मिलकर बायकॉट कर दे और फिलिस्तीन की हिमायत करे, खुदा शाहिद है वो भीख मांगने पर आ जाएगा। ये अमेरिका और इसराइल भीख मांगेंगे। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर सिर्फ सऊदी अरब हमारा साथ दे मैं उसको भीख मंगवा के रहूंगा, इसलिए कि ये ईरान है, ये इराक है, ये सऊदी अरब है कि जहाँ तेल की पैदावार होती है। लिहाजा आज के जमाने की जरूरत है कि जहाँ जहाँ भी इंसान है और जहाँ जहाँ भी खासकर मुसलमान है उन्हें एक होने की जरूरत है। कहीं भी मजलूम की आवाज बुलंद हो तो उसके साथ हमें होना चाहिए। लिहाजा हम यहाँ से आज ऐलान जंग करते हैं और हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये बात को संभाल। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं एक डेलीगेशन जो है वो अमेरिकन कॉन्सुलेट को जाएगा। मैं जो डेलीगेशन के मेंबर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे पुलिस के भाइयों के साथ चले जाएं। सोहन सिंह जाएंगे, अब हैं नहीं तकरीर करेंगे, ठीक है। जी अब्दुल अजीज साहब, मौलाना मारूफ सल्फी साहब, नासिर अहमद साहब, जनाब मलिक मोहम्मद इसहाक साहब, सुजाउद्दीन साहब और महर अब्बास रिजवी साहब से गुजारिश है कि आप लोग पुलिस की गाड़ी में चले जाएं कॉन्सुलेट और वहां पर जाकर डेपुटेशन
जो है वो देकर फिर आप लोग वापस यहाँ पर आए। তো যেমনটা বন্ধুরা আপনারা শুনলেন, এই মুহূর্তে কিন্তু ডেপুটেশন জমা দেওয়ার কিন্তু কর্মসূচি কিন্তু পালন করা হচ্ছে, যেখানে কিন্তু কলকাতা পুলিশের সাহায্যে কিন্তু এই ডেপুটেশন জমা দেওয়া হচ্ছে। যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে নির্বাচিত কিছু লোকেরা কিন্তু যাচ্ছে ডেপুটেশন জমা দিতে পুলিশদের সাথে। ইতিমধ্যেই কিন্তু বিক্ষোভ কিন্তু অনেকই দেখানো হচ্ছে, যেমনটা আমি দেখতে পাচ্ছি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কিন্তু এখানে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে, এবং যাতে প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ যাতে শান্ত হয় তার কারণে কিন্তু সবাই এখানে কিন্তু র্যালিতে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বক্তব্য রেখেছেন, এবং এটা বারবার করে বোঝাতে চাইছেন যে যাতে কাণ্ড যাতে আর বারবার না হয়, যাতে বাচ্চাদেরকে বিনা কারণে যাতে মারা না হয়, সেই কারণের জন্যই কিন্তু তার সমর্থনেই কিন্তু আজকে এই র্যালি কিন্তু কিন্তু পালন করা হচ্ছে, যেখানে হাজার হাজার লোকেরা কিন্তু অংশগ্রহণ করেছেন। এবং এটি একটি কলকাতার মধ্যে কিন্তু খুবই একটি বড় র্যালি, যেমনটা আমি দেখতে পাচ্ছি, এবং অসংখ্য লোকেরা কিন্তু এখানে কিন্তু পরস্পর কিন্তু অংশগ্রহণ করে আছেন, এবং এখানে কিন্তু বিক্ষোভ কর্মসূচি কিন্তু পালন করা হচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন কমিটি থেকে বিভিন্ন মুফতিরা এসেছেন, বড় বড় নেতারা এসেছেন, যেখানে এসে একসাথে সবাই মিলে প্যালেস্টাইনে যেরকম যুদ্ধ চলছে তার বিরুদ্ধে কিন্তু এখানে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন, যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং ইতিমধ্যেই ডেপুটেশন জমা দেওয়ার কিন্তু কর্মসূচি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। তো আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন এই লাইভ। जो ये जुल्म करता है उसे हम जालिम कहते हैं, और जिन पर जुल्म किया जाता है वो मजलूम होता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत ने फरमाया है, सारी दुनिया तस्लीम करती है कि आपसे बड़ा कोई इंसानों का खैर खा और इंसानियत का पासबा नहीं। आपने अपनी जुबान मुबारक से যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, যত দূর চোখ যাচ্ছে কিন্তু লোকেদের কিন্তু মাথা এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এবং পতাকা নিয়ে কিন্তু সবাই এখানে কিন্তু বিক্ষোভের কিন্তু কর্মসূচিতে কিন্তু অংশগ্রহণ করেছেন, যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন। जो कलमा पढ़ते हैं वो भी मुराद है, और जो आदम की औलाद है वो भी मुराद है। किसी भी खित्ते में, किसी भी जगह में, किसी भी मकाम में अगर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना ये इंसानियत की पहचान है, ये इंसानियत की तरक्की है, ये इस बात की अलामत है कि इंसान अभी जिंदा है। हम लोग इस वक्त जो है जालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं, और जालिम की मदद हमको इस तरह करनी है कि उनके जुल्म को रोक दिया जाए, उनके जुल्म को खत्म कर दिया जाए, उनके जुल्म को मलियामेट कर दे। अभी हमारे सामने हमारे इस रियासती वजीर जावेद अहमद खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो बात मेरे भी मजमून का हिस्सा है कि आप कैसे उस जालिम का पंजा मरोड़ेंगे। मैं समझता हूं जो उन्होंने कहा है कि उनकी माशी कमजोरी और उनके माश को और उनके इकोनॉमिक्स जो ताकत है उसको खत्म करने के लिए इसराइल के खास तौर से और अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं उनका आप न सिर्फ बायकाट करें बल्कि आप उसके खिलाफ मुहिम चलाएं कि कोई भी उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करे। और दूसरी बात यह है कि आप मजलूमों के हक में दुआ करें। मजलूम के हक में जब दुआ होगी तो यकीन है और दिलो जान से इस बात पर हमारा ईमान है कि मजलूम की वो दुआ कबूल होगी। और तीसरी बात ये कहनी है कि एहतजाज हर वक्त आप करेंगे, अपनी जुबान से, अपने कलम से, अपने माशरा में, फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, जहां आपको मिले जालिमों के खिलाफ एहतजाज करें। यही इस हदीस का निचोड़ है, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो उन तमाम फलस्तीन के शहादा को, और अल्लाह ताला उन शहादा के मकाम को आला करे और मजलूमों की मदद करे। इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल calm down, इस्राइल सब सब, इस्राइल सब सब। एरपोरे आमी सोहन सिंह आतियाना, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर में अपनी बात रखें। सोहन सिंह आतियाना जी से गुजारिश है
کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ مختصر میں اپنی بات رکھیں. आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पैलेस्टाइन के दोस्तों के लिए, पैलेस्टाइन के हक की लड़ाई के लिए. आज आप ये देख लीजिए 75 साल पहले जैसे हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने दो तरफ बांट दिया, हिंदुस्तान का पाकिस्तान और इंडिया बना दिया, वही चीज उन्होंने पैलेस्टाइन में घुस के पैलेस्टाइन के घर में यहूदियों को बुला करके उनका परमानेंट लड़ाई का जरिया एक बना दिया कि वो सारी जिंदगी वहां लड़ते रहो. और ये अमेरिका और इंग्लैंड वालों की चाल है अंग्रेजों की. आज अमेरिका की जो भी आर्म्स लॉबी है उसको कंट्रोल कौन करता है? यहूदी कंट्रोल करते हैं. यहूदियों का काम क्या है? ब्याज खाना, और वो बैंकों को कंट्रोल करते हैं. उसकी वजह से अमेरिका पर प्रेशर होता है. अमेरिका पहली कंट्री थी जिसने इजराइल को मान्यता दी, और इंडिया पहली कंट्री थी जिसने पैलेस्टाइन को मान्यता दी. और आज हिंदुस्तान की जो अभी गवर्नमेंट है वो एकदम उल्टा हो गया. पूरा फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अपनी पूरी पलट दी है. अब वो पिट्ठू बन गए हैं अमेरिका के और इजराइल के, और इतना बड़ा जुल्म हो रहा है. ये मोदी सरकार ने अपने पड़ोसियों से भी लड़ाई लड़ रही और पिट्ठू बन गए हैं अमेरिका के. ये आखिरकार करना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता. लोगों को आपस में डिवाइड करो और रूल करो. हम लोग को सबको मिल करके एक साथ एकजुट आवाज में प्रो पैलेस्टाइन हम लोग को नारा देना चाहिए, और ये आवाज वहां तक पहुंचे लोगों के पास कि जो जुल्म कर रहे हैं उसको जुल्म को रोका जाए, सीज फायर की जाए. इमीडिएट यूएनओ में हम लोगों को पूरा जोर से अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ ये करना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, फिलिस्तीन